So my dear friend, welcome back your YouTube channel Easy Tricky and me. I am Arjun sir. My hairstyle is changed. But today we will learn pattern. Pattern you know, but you don't know. But I told you that is a pattern. Pattern is a make to think to make different thing. है ना? It's a framework. है ना? Let me explain you. Like we make capture a photo and we edit go to edit app and we make a frame to photo, very cute, very easy, and we make photo to video like that. Pattern है ना? Pattern we have to provide a English very smoothly and very easily and it beautifully as well, because है ना, we simply say where do you go, where can you go, so it provide a power to you. Power, it means like example, able to, unable to, like क्षमता, like power, it provides the power. So by that the pattern we use these type noun and helping word and verb and things, so it make sentence beautiful and more beautiful. So it be very nice English when we talk to anyone and when we say to anyone. सो आइए हम इस टाइप की इंग्लिश देखेंगे, अब से हम इस टाइप का पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत अच्छा होगा और इससे आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाएंगे. आइए देखते हैं पैटर्न किसको कहते हैं. पैटर्न हिंदी में बोलते हैं प्रतिरूप, स्वरूप, मिसाल होती है एक तरीके की, साचा होता है, स्वरूप होता है, फ्रेम होता है, उदाहरण होता है, आदर्श होता है, नमूना देने वाला होता है, प्रस्तुत करने वाला. कई नमूने भी घूमते रहते हैं हमारे यहाँ पे. नकल बनाने वाला, है ना, किसी की कॉपी करना है, तो उस तरीके का ये पैटर्न होता है. पैटर्न नाम है, इसको पैटर्न नाम दिया गया. पैटर्न इज इंडिकेट ऑफ ऑल द थिंग्स, है ना. बाय द पैटर्न इट ओनली नेम्स, है ना. बाय दैट वी वर्क इन हेल्पिंग वर्क. हेल्पिंग वर्क as you told it many times. ठीक है. हेल्पिंग वर्क, द फ्रेमवर्क विल बी सेम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा. दैट द फॉर्मूला विल बी सेम द ऑलवेज, बट देयर वी यूज दीज टाइप्स वर्ब्स, है ना, अटैच विथ हेल्पिंग वर्ब. सो है ना, इट्स हेल्प by the B chapter, है ना. By the B chapter it work. By the help of B chapter it will convert in that thing. So I am delivering you so much PD in B chapter because it's a basic thing to you, है ना. Other thing don't know, other video you don't see ever, but I am telling you pattern. ठीक है. After the complete my lecture we start what is the pattern, how to work with pattern. ठीक है. So that's I am telling to you. B chapter helping or as we know, present, is, am, are, past, was, were and future will be same. These helping verb will be है ना, continue with us. These helping verb will be work with us and continuity work for these things. So like I said you some example to you. जैसे मुझे गाड़ी चलाने की क्षमता नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे, मुझ में गाड़ी चलाने की क्षमता नहीं है आज. ठीक है. तो इस तरीके से बोलेंगे पैटर्न में. आई एम बी चैप्टर हो गया. अनेबल टू, है ना, अनेबल टू लग गया हेल्पिंग वर्ब के साथ. अनेबल टू, आई एम अनेबल टू डू, है ना, या राइड बाइक टुडे. इस तरीके से हम बोलेंगे. मेरी आज वजन उठाने की हिम्मत है. आई एम एबल टू जुड़ गया, हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ गया, इट अटैच विद हेल्पिंग वर्ब. आई एम एबल टू, है ना, पिक up the load. So these things we can say like that.
I am able to drive car. I am unable to drive car. There is, we will not use of not. Apart from not, a place of not, we will use unable. है ना, place of not we will use unable. We will not convert helping verb in negative form. ठीक है, am I not convert. Only use able and unable. So these type things we use in pattern. It convert to frame, है ना, नकल बनाता, नमूना, फ्रेम, उदाहरण, आदर्श, स्वरूप, मिसाल, साचा, स्वरूप, प्रतिरूप, ये सारा कुछ हम देखेंगे, है ना। धीरे धीरे हम बहुत सारे पैटर्न पढ़ेंगे जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही लाजवाब हो जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से बोली जाएगी। तो आप देखेंगे कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे यहाँ पे। Some बच्चे are disturbing me, so I keep mouth in lips, so don't worry about that. I'm not saying to you that you are silent, you be silent. So है ना, these things हम भी see continue in chapter and it's work very easily. So let's we start, है ना। The first pattern is it convert to can and could. So some study of theory of can and could. After that we understand rule of able to, unable to, and it start to able to and unable to for the beginning. It's वेरी इजी। अपन जीरो से पढ़ते हैं, आपको पैटर्न बिल्कुल समझ में आएगा और आपकी इंग्लिश बहुत ही फर्राटेदार हो जाएगी। सो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, है ना। आप सबको बोल सकते हैं, बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो पैटर्न इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन यू टॉक with English. It provides you very more the things and which make beautiful your English speaking skills and all the things of English. So let's we start pattern and some notes we study. After that ऊपर what is written we study, what have written it intense. So इतने रूप में so as बोलते हैं, है ना, इतने रूप में, उतने रूप में, सो एज सो को क्या बोलते हैं, वैसा ही। एज सो को क्या बोलते हैं, वैसा ही। एज वी नो कैन इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट, कैन कुड इज यूज्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। सो एज ऑल बट वी कैन नादर यूज कैन फॉर फ्यूचर नॉर कुड फॉर फ्यूचर। देखेंगे हम कुछ फ्यूचर में कैन कुड का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। what have written here, now we have got this pattern, हमने ये पैटर्न ले लिया है। we can use this pattern, हम कर सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट एज वेल एज फ्यूचर, सबके लिए हम कर सकते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीन ही काल होते हैं एज यू नो, है ना। इसकी हिंदी आप समझ गए होंगे। एज वी नो हम जानते हैं कि, है ना, कैन यूज्ड फॉर प्रेजेंट, पास्ट, हिज यूज्ड पास्ट प्रेजेंट, सो एज इतने ही रूप में, ऑल बट वी कैन नादर वैसे ही यूज़ कर सकते कैन फॉर फ्यूचर, नॉर वैसे ही कैन को कुड को यूज़ कर सकते फॉर फ्यूचर। दोनों को हम फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते शक्ति बताने के लिए। तो ये बताना चाह रही है इंग्लिश, है ना। आई टोल्ड यू इन हिंदी, इंग्लिश एज वेल। लेट्स वी टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज and we go to next page. So we study able to, unable to, है ना। आईडी क्या है, योग्य, लायक, क्षमता, है ना। सकता है, शक्ति है, आपके पास क्षमता है, योग्यता है, सकता है, शक्ति है। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस बी अपन जानते हैं, बी चैप्टर में अपन ने पढ़ा है। इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है बी की। बी इज एम आर, वॉज वर, और फ्यूचर के लिए विल बी। प्लस लगाएंगे अपन एबल टू, अनेबल टू, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हम जानते हैं खाना पीना उठना बैठना, जिसके हिंदी में पीछे ना आता है, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। नाउन क्या होती है, नाउन इज द
नेम ऑफ प्लेस, पर्सन आर थिंग। एडजेक्टिव क्या होती है? नाउन की विशेषता बताती है ना। तो चलिए जल्दी से हम हेल्पिंग वर्ब देख ही लिया है। प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर, वॉज वर, फ्यूचर में विल बी, सकता हूँ होगा, है ना, पाया कर सक, पाया, सकेगा, पाएगा। जल्दी से देखिए, किसी भी कार्य को करने की योग्यता, लायक, क्षमता बताता है। नेगेटिव में नोट हमें ध्यान रखना है। नॉट सेंटेंस बनाने के लिए हमें नॉट के स्थान पर अनेबल टू रखना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव नहीं करना है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई गिव यू सेंटेंस, प्लीज रीड एंड मेक। मुझे माफ़ करना एक सेंटेंस है। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे माफ़ करने को क्या बोलते हैं? ऑर्डर दे रहा है, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं सारी ज़िंदगी आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, है ना। तो आई वॉज लगा सकते। सो माय डियर फ्रेंड, हम यहाँ ध्यान देंगे कि नहीं कर पाया मतलब पास्ट में है, और अगर हम हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव करते हैं, वॉजेंट को नेगेटिव करते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा, एबल टू फिर हो जाएगा। या इसको हम नेगेटिव नहीं करते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव कर दिया तो एबल टू रखिए, पॉजिटिव रखिए, अनेबल मत करिए उसको। या ये पॉजिटिव रखा तो ये नेगेटिव रखिए, दो में से कोई एक ही नेगेटिव करना है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से हम बनाते हैं, सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। आई वॉज अनेबल टू डू एनी थिंग फॉर यू इन होल लाइफ, सारी ज़िंदगी। ठीक है। सो जल्दी से देखिए कैसा बना है। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई वॉज एबल टू डू एनी थिंग फॉर यू इन होल लाइफ, सारी ज़िंदगी में आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। तो जल्दी बनाइए नेक्स्ट सेंटेंस। क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी? क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी? इंट्रोगेटिव में जल्दी बनाइए। बना पाएगी फ्यूचर है, पीछे देख लिया आपने, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर है, तो बिल भी आ जाएगा। बिल सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड है तो बी सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो विल कांग्रेस बी एबल टू मेक गवर्नमेंट। तो फिर बनाइए, क्या BJP सरकार गिरा पाएगी? जल्दी से आप बना सकते हैं। यू मेड आई थिंक सो। चलिए जल्दी से देखिए, विल BJP बी एबल टू डाउन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस बनाइए, तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे। तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगी, है ना। नेवर यू, इस पर नेवर फर्स्ट में आएगा। नेवर यू वुंट बी, देखो मैंने इधर नेगेटिव किया, वुंट बी तो यहाँ पॉजिटिव है, एबल टू अंडरस्टैंड मी। ठीक है, नेवर आगे पीछे, लेकिन फर्स्ट में यहाँ ज़्यादा जम रहा है। जल्दी से नेक्स्ट सेंटेंस आप बनाइए, तुम मेरे क्या लगते हो। और एक सेंटेंस हो गया, तुम मेरे क्या लगते हो, और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, है ना। व्हाट इज़ द रिलेशन विथ यू एंड मी, ऐसा ये एंड का साइन है, ये इसको एंड के साइन से डिनोट करते हैं, है ना। व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, इस तरह टेंस में भी लगा सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हो आप मेरे बारे में, है ना। व्हाट इज़ द रिलेशन विथ मी एंड यू, आपका और मेरा रिलेशन क्या है, नाता क्या है, संबंध क्या है। बना लिया होगा, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। व्हाट इज़ यू एबल टू डू फॉर मी ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता हूँ, है ना, फिर भी, स्टिल बोलते फिर भी को, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता हूँ। आई एम नथिंग फॉर यू, ऐसा ही बोल सकते हैं। आई एम एंट रिलेशन विथ यू, मेरे साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है। आई एम नथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। आई एम नथिंग फॉर यू, ऐसा ही बोल सकते हैं, मैं आपके लिए कुछ नहीं हूँ। आई एम एंट रिलेशन विथ यू, नथिंग का नेगेटिव हो गया। आई एम नथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। आई एम एंट रिलेशन विथ यू, मेरा आपके साथ क्या रिलेशन है। स्टिल, फिर भी। आई एम एबल टू डू एनी थिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, फिर भी मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई एम एबल टू डू एनी थिंग फॉर यू। चलिए नेक्स्ट बनाइए जल्दी से, मेक वेरी सून, आई होप यू मेक्ड। यदि मैं तुम्हारे कोई काम आ सका तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा। यदि मैं तुम्हारे
कोई काम आ सका, एक सेंटेंस हो गया सका, यहाँ तक एक सेंटेंस, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। आई एम एबल टू यूज़ फॉर यू, ऐसा कभी कभी कंजक्शन लग जाता है फॉर यू, बाकी नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। आई एम एबल टू यूज़ यू, आई एम एबल टू यूज़ फॉर यू। सो तो आई विल वेरी लकी, मैं बहुत लकी समझूंगा, विल भी आ गया। आई विल वेरी लकी ग्रेटफुल माई सेल्फ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वह समय पर आ पाएगी। जल्दी से बनाइए, मेक वेरी सून। आई होप यू मेक वेरी वेल। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वह समय पर आ पाएगी। आई एम अनएबल टू थिंक, या आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो दैट शी विल बी कम ऑन टाइम टू टाइम, ऑन टाइम। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन, मुझे यकीन है कि एक बन गया, कि तुम एक दिन सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाओगे। आई ट्रस्ट, आई बिलीव दैट। स्क्रीनशॉट ऑफ सेंटेंस। यू विल बी रिच द हाईएस्ट पीक ऑफ द सक्सेस। हाईएस्ट पीक बोलते हैं वो सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने को, हाईएस्ट पीक ऑफ द सक्सेस, है ना। रिच मतलब होता है पहुंचना, यू विल बी हो जाओगे, बन जाओगे, विल भी लगाएंगे। बी का मतलब होता है होना बनना रहना, विल भी रखता है फ्यूचर के लिए। बी चैप्टर में यूज़ करेंगे तो, बी चैप्टर में सारी चीज़ें फ्यूचर के लिए यूज़ करेंगे तो विल भी साथ में रहेगी। अगर हम चाहें तो एबल टू भी लगा सकते हैं, वी विल बी एबल टू रिच द हाईएस्ट पीक ऑफ द सक्सेस, हमें उम्मीद है, भरोसा है, पहुँच सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और इसके अलावा मैं कामना करता हूँ कि तुम अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे, है ना। इसके अलावा क्या बोलते हैं, एंड मोर एवर या अपार्ट फ्रॉम, बोल मोर एवर या अपार्ट फ्रॉम इट, अपार्ट फ्रॉम इट या मोर एवर, ठीक है। मैं कामना करता हूँ कि तुम अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। आई विश दैट यू विल बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश, नाइस इंग्लिश, वेरी वेल इंग्लिश, है ना। दीज थिंग यू कैन यूज़। चलिए नेक्स्ट एंड फाइनल सेंटेंस फॉर यू। हाँ यही सही जगह है, दिस इज़ द राइट प्लेस, एक सेंटेंस हो गया। हम यहाँ आसानी से सूर्य ग्रहण देख लेंगे, है ना। वी विल बी एबल टू सी अ वॉच सोलर क्लिप्स बोलते हैं ईजिली फ्रॉम हेयर। चलिए आई होप, मैं मंगल करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया है बी चैप्टर और पढ़ा है। एक बार और वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बहुत धैर्य से इंग्लिश बोलिए, आपका मंगल होगा, बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं, भरोसा है। आप बस स्टार्ट कर दीजिए, अगर तक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इकट्ठे हम सारा खाना नहीं खा सकते। बोरी भर खरीद के कुछ चीज़ें ले आए हमने और उसको इकट्ठे खा लेंगे, नहीं। हमको धीरे धीरे फर्स्ट ही दिन से सीखना स्टार्ट कर देना है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट वीडियो से जाके एपिसोड देखना स्टार्ट करिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बेसिक से जीरो से लेके महा जीरो से पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको ऐसा यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा मटेरियल। तो चलिए मैं अपनी बॉडी को विश्राम देता हूँ, है ना। आई क्लोज माई माउथ, सो प्लीज़ बी कंटिन्यू एंड बी स्टडी, बी स्पीक रेगुलरली। आई होप यू बी हैप्पी